issued more than one dishonored checks, and they ban, if someone has issued more than one dishonored check, then he is banned from issuing another check for 5 years. In the United States of America, the law on check bounce differ from state to state. There is an imposition of both civil and criminal liability. Civil liability includes payment of an amount being double or triple the amount of the check, while the criminal liability includes imprisonment and imposition of fines. Coming to India, dear friends, we find that we have the Negotiable Instruments Act of 1881. And that way it is 139 years old. However, the criminal prosecution or the criminal element in the act has been added recently in the year 1988 by an amendment, by inserting section 138 to section 142. The question arises, when the act was there, the act provided civil remedy. The act has not debarred initiation of criminal proceeding under the provisions of penal code, particularly under section 406 and 420 of the IPC. Why the legislature in its wisdom wanted to amend the act and add certain penal provisions? Friends, the reason is that there was rampant dishonor of checks, which had rendered check transactions problematic. A mistrust was growing towards towards check transactions, and that led to the encouragement of a move towards cash transactions. That the cash transaction has its own problems. The first one was it led to counterfeit notes. It led to corruption. And most important, large amounts of untraceable and untaxable money. So against these backgrounds, to remedy the mischief, where the check system was fallen into a mistrust, the legislature in its wisdom thought to make it penal, so that the fear of incarceration may act as a deterrent in misusing the check or getting the check dishonored. Dear friends, I will come to section 138 to 142 a little later. I would say that in 2002, the NI Act has been again amended, wherein the 5 sections have been added from section 143 to section 147. Section 143 is intended, and this was primarily intended to achieve a speedy trial. Section 143 enables a judicial magistrate or the magistrate of the first class to conduct a summary trial. It provides for a continuous day-to-day hearing of the case till its conclusion, and further stipulates that the trial is to be completed within 6 months
from the date of the complaint. It further empowers the magistrate to pass a sentence for imprisonment for a term exceeding 1 year, or a fine not exceeding twice the amount of the check, notwithstanding anything contained in the contrary in the CRPC. Another section 144 was added, and it deals with service of summons. It has been provided that the magistrate is not required to follow the elaborate procedure for serving summons as required by section 61 to 90 of the CRPC. The subsection of this section allows the summons to be served through speed post and notified private couriers besides the normal process. Precisely speaking, this section has brought about the concept of constructive service. According to this, where the sender has dispatched the notice by post with correct address, then it can be deemed to have been served on the sender unless he proves that it was really not served. Section 145 contemplates... I will interrupt over here, and I will request you to address in bilingual manner, so that students, those who are from rural background, we have got okay, I can check. I can switch over to Hindi. हाँ सर, अगर हिंदी भी तो चलेगा, और अगर इंग्लिश हिंदी हम लोग बाइलैंग्वेज रखें, मतलब जो बात हम कह रहे हैं उसको साथ साथ हमको हिंदी में भी कहना पड़ेगा. हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू नीरज जी. दूसरी इसमें एक धारा 145 है. मैं अब थोड़ा पीछे तो नहीं जाऊंगा, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं. जो ये इसमें ये प्रावधान किया गया कि कॉम्प्लेनेंट को अपनी गवाही देने के लिए सिर्फ शपथ पत्र के माध्यम से वो अपनी गवाही दे सकते हैं. और यदि उस शपथ पत्र को जो आरोपी हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा दायर किया गया है, अगर वो उसको कंट्राडिक्ट करना चाहें तो उनको उस स्थिति में उनको एग्जामिनेशन के लिए आना पड़ेगा. नॉर्मली शपथ पत्र के द्वारा ही जो कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने परिवाद दायर किया है, जिनका चेक डिजॉनर हुआ है, वो अपनी गवाही दे सकते हैं. ये प्रावधान किया गया धारा 145 में. दूसरी धारा है 146. सर, इसको अगर समझने के लिए मैं आपसे सर कुछ इसको प्रैक्टिकल या एग्जांपल के तौर पे समझूं कि डिसऑनर आखिर होता कब है, कब हम इसको सब शुरुआत वहां से करते हैं. I have deliberately omitted that. I first came to certain amendments because let's start with the process of dishonor. कि आखिर डिसऑनर कब कह रहे हैं, डिसऑनर का जो रीजंस है, या डिसऑनर कब उसको मानेंगे, या उस पर कब लीगल इम्प्लीकेशंस बनेगा, और फिर उसके जो अमेंडमेंट्स आए या जो उसको जो लीगल राइट्स मिले उसको हम लोग समझें. अदरवाइज क्या है कि हम लोग लीगल राइट्स को पहले समझ रहे हैं और वो उसका अराइज कैसे कर रहा है वो राइट्स, या फिर वो प्रोसीजरल है. ये these amendments have been now you have to read 138 to 142 along with these. So these amendments, okay, very well. मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रावधान है चैप्टर 17 इसमें ऐड किया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, ताकि आपराधिक दायित्व इसके लिए तय किया जा सके. इम्प्रिजनमेंट और फाइन का उसमें प्रावधान किया गया. और ये जो सेक्शन 138 टू 142 है, उसमें सेक्शन 138 में इसका प्रावधान किया गया कि किस हालत में चेक को डिजॉनर्ड माना जाएगा और कब आप उसके लिए आपराधिक मुकदमे दायर कर सकते हैं.
सेक्शन 138 में आप चेक आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं और बैंक अगर आपको चेक वापस कर देता है कहते हुए कि इनके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था, या इन्होंने जो ट्रांजैक्शन का एक लिमिट बनाया है ये चेक उन्होंने उससे अधिक का इशू कर दिया है, यानी कि अगर अगर कोई व्यक्ति कोई सर्विस ले रहा है या कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लीजिए कोई किसी ज्वेलर के यहाँ जा रहा है और वहां पर उससे कोई अंगूठी खरीदी और बदले में उसको 20,000 रुपए का चेक दिया और ज्वेलर को लगा कि भाई ये तो भरोसेमंद व्यक्ति हैं, इनका चेक जो ये दे रहे हैं उसको विश्वास करके हम इनको अंगूठी दे सकते हैं, और बाद में वो चेक बाउंस कर गया, या किसी ने कोई और वस्तु खरीदी, कोई कोई ऑटोमोबाइल खरीदा, किसी ने कुछ बैंक को किसी ने पेमेंट किया, किसी ने, तो वो चेक डिसऑनर अगर कर गया, हाँ, तो जिसको जिसको उन्होंने पेमेंट चेक के माध्यम से किया था, जो चेक आप देंगे वो या तो आइदर इन डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट होना चाहिए और लिएबिलिटी होना चाहिए। तो आपने ठीक कहा है कि आपने वो चेक प्रेजेंट करके आप गुड्स परचेज कर लिए एंड दैट चेक स्टूड बाउंस्ड। अब आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप सीएनएफ हैं या आप कोई एजेंसी चलाते हैं, आप चेक देके उनसे गुड्स अपना प्रोक्योर कर लिए और लेटर ऑन जो चेक आपने दिया वो बाउंस कर गया, तो ही विल सू यू। ही हैज द किसी से ऑप्शन काम करवा लिया, कोई कोई मकान बनवा रहा था, उसने कॉन्ट्रैक्टर को चेक दिया और बाद में वो चेक बाउंस कर गया और उसने काम करवा लिया, तो हाँ, एक्यूज्ड को एक ही डिफेंस है कि वो ये दे ये वो डिफेंड अपने को ये कर सकता है कि दिस चेक हैज not been issued in discharge of debt or liability, or there was no such situation. I had no such dealings with him where I could have issued any check to him. So and now if you will come to section 139, यहीं पे मैं आपको केस देता हूं सर, कि मान लीजिए कोई किसी से फर्नीचर बनवा रहा है और उसने 1 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है, कि ये फर्नीचर के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और वो फर्नीचर में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, वो फर्नीचर में डिफेक्ट आ गया, उसने तुरंत से चेक को रुकवा दिया, चेक स्टॉप करवा दिया और उसका चेक बाउंस हो गया जो जिसने फर्नीचर दिया था। So therefore, you are correct. Therefore, the stop payment doesn't come within the purview of section 138. 138 says, I'm reading, where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part of any debt or other liability is returned by the bank unpaid, either because of amount of money standing to the credit of the account is insufficient. This was one reason, that the money was insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with the bank. So there are the two situations. हो सकते हैं चेक बाउंस, चेक डिसऑनर के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं सर? चेक डिसऑनर के आपको क्लोज्ड अगर अकाउंट क्लोज्ड है तो आपको आप एक बैंक में एक अपना नाम से चेक इशू कर दे, किसी ने दे दिया, दैट अकाउंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। यानी कि पहला एक रीजन निकल के आ रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, but you can stop, the service is defective and you have therefore you have ordered the bank not to pay him, or somebody has fraudulently obtained your check and you have asked the bank not to pay him, that will not come within the mischief of section 138. If the fund, if he has issued a check in discharge of debt and the amount is not lying in his account, he is answerable. Or if he has an agreement with the bank that yes, one day you can transact only 50,000 from my account, your check is of 55,000, then the check would be returned. That would also commit a mischief under section 138. It's not that all situations of अभी एक सिचुएशन हमने डिस्कस करी सर, कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी ऐसे बैंक अकाउंट का चेक दे दे जो बैंक अकाउंट क्लोज्ड है, जो बैंक अकाउंट ऑपरेशनल नहीं है, या चेक देने के बाद वो अपने बैंक अकाउंट को बंद करवा दे, बैंक अकाउंट क्लोज करवा दे, तो वैसी स्थिति में चेक बाउंस होगा। अब इस चेक बाउंस को क्या माना जाएगा? डिसऑनर?
आपको चेक देने के बाद उसको आपको जिस डेट का चेक है, अगर उस दिन में अकाउंट एग्जिस्टिंग था and subsequently it has been closed, it's a case of 138. जैसे जैसे मान लीजिए जितेंद्र सिंह हम हमारे संग जुड़े हुए हैं, इन्होंने किसी से सामान खरीदा, इन्होंने चेक दिया और चेक देने के बाद बैंक में गए, बोला हमको अकाउंट बंद करवाना है, इन्होंने अकाउंट बंद करवा दिया। अगले दिन जिससे सामान खरीदा था उन्होंने चेक को जमा किया और वो चेक जो है ऑब्वियसली 2 दिन के बाद लौट के आ गया। हाँ, तो he is very much liable for 138. उनके ऊपर में 138 हो सकती है। Decided on the day it was issued. यानी कि ये रीजन जो है कि अगर बैंक अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, हाँ, लेकिन उसमें ये है कि ये सेफगार्ड्स भी है, मतलब एक्यूज्ड को, जिसने ऑनर नहीं हो, जिसका चेक डिसऑनर्ड हुआ है, you have to give him a notice that look here, you gave a check to me and I presented it to the bank says the account has been closed. हम नोटिस की बात को डिस्कस करेंगे सर। अभी हम चाहते सर पहले एक बार डिसऑनर के कौन-कौन से रीजंस हो सकते हैं, सारे रीजंस को हम एक बार समझ लें, क्योंकि सबसे पहले डिसऑनर होगा कब। डिसऑनर जो 138 में कॉन्टेम्पलेटेड है, वो डिसऑनर एक ये है कि आपके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं था, पहला रीजन, सो दैट द बैंक कुड ऑनर द चेक, दैट इज इनसफिशिएंट बैलेंस। और दूसरा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, you have sufficient amount in your account, but then you have an agreement with the bank that yes, beyond 50,000 you cannot transact, और हमने चेक काट दिया 55,000 का, so that would also be a case of criminal proceeding 138 proceeding हो सकती है। 138 proceeding. There are other proceedings that you can resort to. If somebody has given you a check fraudulently, the account is not existing, that it's a case of fraud, the IPC is there to take care of it. हाँ, उसके लिए अलग सेक्शंस भी हैं। अलग सेक्शंस है, इंडियन पेनल कोड है। You can go for compensation, you can seek, there are other remedies. You can go for, जैसे कि मान लीजिए सिग्नेचर मैच नहीं होता है तब भी चेक बाउंस होता है। No, सिग्नेचर मैच नहीं होता है, it is not a case of, then you can issue it another check. The bank will call you that bank is not liable. अगर फिगर मैच नहीं हो रहा है, जो न्यूमेरिकल फिगर लिखा गया है और जो अल्फाबेटिकल, those do not come within the purview of 138. हाँ, लेकिन तब भी चेक बाउंस होगा। In that, नहीं, वो check is returned, not bounce. It is returned that you signed it properly or you correct it. यानी कि उसको बाउंस नहीं कहेंगे, उसको रिटर्न कहेंगे। उसको रिटर्न करेंगे, आप उसको करेक्ट करके दे दीजिएगा, सिग्नेचर मैच कर जाएगा आपका दोबारा, तो फिर हो जाएगा। या चेक में कोई भी अशुद्धि अगर है, अगर चेक में डेट गलत है, या फिर आपने अगर चेक जो दिया वो 3 महीने की वैलिडिटी अभी The 138 is concerned with the fund lying in the account. It has nothing to do with those things. नहीं, मैं सर सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे ये समझ जाएं कि चेक बाउंसिंग के रीजन क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं। फंड आपके अकाउंट में है, आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं और आपने चेक जारी किया एज अकाउंटेंट, एज कैशियर, एज फाइनेंस पर्सन, और आपका वो चेक, आपकी कंपनी का चेक बाउंस कर गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए बाउंस करे या रिटर्न करे कि आपकी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल, कई और वजह भी हो सकती है। बिल्कुल सही है। इन सब कारणों से अगर आपका चेक रिटर्न हो जाता है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, डेट वेरी करता है, अमाउंट आप इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स अलग अलग लिख दिए हैं, अकाउंट नंबर नहीं लिखा, अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, अकाउंट नंबर गलत लिख दिए हैं, so in that event the banker will inform you that the signature is not matching, date is wrong, in these things you can ask the drawer of the check that you please correct it. So these could be a bona fide mistake and these could be corrected. दूसरी एक गलती होती है कई बार, जैसे आप किसी कंपनी के लिए चेक काट रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी के चेक में आप स्टैंप को लगाएं। किसी भी फॉर्म के चेक में स्टैंप का लगना बहुत जरूरी है, अगर वो प्री प्रिंटेड चेक नहीं है, और कई बार लोग स्टैंप नहीं लगाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है। चेक को सही से ड्रॉ करना, एक छोटा सा चेक लिखने में जिसमें मात्र 2-4 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन अगर उसको आप तकनीकी रूप से गलती कर दीजिएगा तो हो सकता है कल को आपको ये सुनना पड़े कि कहां से बीबीए करके आ गए, चेक लिखना तक नहीं आता है। Those are curable defects and those will not invite criminal prosecution. It may invite criminal prosecution in some other sections, but not in section 138. लेकिन हो सकता है कि माल की सप्लाई रुक जाए, हो सकता है पार्टी आपका जो काम हो रहा था वो काम रुक जाए। मेरे साथ एक ये हुआ कि मेरे एक क्लाइंट मोहाली के थे,
he gave me a check. I took some time in depositing it to the bank. The check bounce kar gaya. I became very angry and I called him that I will prosecute you. You have given me a check. वकील सबसे पहले प्रोसिक्यूट करने की बात करते हैं. So what he did, his legal manager called me. He said, I am coming by next day's flight. You keep your check with you. You will return the check and I will give you the cash. So he came and he gave me the cash and he took back his check. And that was. Took you very seriously. He could have paid me without coming, but he took it seriously that check should not lie with him. Otherwise, he may prosecute me. मैं यहाँ पर आपको सभी बच्चों को बात बताना चाहूंगा कि एक बिजनेसमैन के लिए, एक किसी फर्म के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक क्रेडिबल पर्सन के लिए ये बहुत ही अपने लिए, उसके लिए ऑनर का विषय होता है कि कभी भी उसका चेक लाइफ में बाउंस ना करे. और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके द्वारा जारी किया गया चेक जिस पर उसने अपना दस्तखत बनाया है वो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, वो रिटर्न नहीं होना चाहिए. और मैं एक संस्था से जुड़ा हूं. मुझे अक्सर दिन में कई बार सैकड़ों चेक साइन करने पड़ते हैं. और अगर मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिनांस डिपार्टमेंट या किसी कैशियर की गलती से कभी कोई चेक रिटर्न होता है या अगर उसने बिना देखे कि अकाउंट में कितना पैसा है और उसने उससे अधिक का चेक काट दिया, तो यह मेरे लिए बहुत ही कंसर्न का विषय होता है. मैं इस पर बहुत अधिक सावधानी बरतने के लिए हमेशा अपने सारे जितने भी कैशियर या अकाउंटेंट या जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बहुत इस पर, और आपको भी मैं बता रहा हूं हमेशा के लिए कि आप अपने चेक को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहेंगे. कभी भी आप जब भी चेक जारी करेंगे उसको यह हमेशा सोच समझ के जारी करेंगे कि कल को ये चेक किसी भी सूरत में डिसऑनर नहीं होना चाहिए, ये बाउंस नहीं होना चाहिए. और ये एक प्रतिष्ठा का विषय बना करके जो बिजनेसमैन रखते हैं, जो व्यापारी रखते हैं, उनकी ट्रेड में, उनकी समाज में, व्यापार जगत में उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी इज्जत होती है. कभी कभी तकनीकी खामियों से भी चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है, वो बाउंस हो जाता है. मैं उस पर भी सवाल पूछूंगा विद्यानंद जी से. नहीं, अगर आपका चेक बाउंस भी कर गया, इट कम टू योर नोटिस, यू इमीडिएटली रिजॉल्व इट. हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि इसके आपको अवसर मिलेगा. आपको आपकी जिस पार्टी का चेक बाउंस किया है उस पार्टी को कानून में यह प्रावधान दिया गया है. अगला प्रश्न मेरा उसी विषय पर है कि वो सीधा आप पर तुरंत से प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता है. पहले उसको आपको अवसर देना होता है. तो हम बात करते हैं उस अवसर की, नोटिस की, कि डिसऑनर के बाद आपको अवसर देना होगा, नोटिस देना होगा. हो सकता है पहले आपको नोटिस देने के भी पहले उससे बात करनी होगी. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक की गलती से वो डिसऑनर हो जाता है और बैंक उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस लिख देते हैं और मालूम पड़ता है कि बैलेंस था. ऐसे केसेस भी अक्सर हो जाते हैं. तो वहां पर आपको बात करना होगा, पता करना होगा. और जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि इंटेंट में गड़बड़ी है, यानी कि वो आपको भुगतान करना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको समय गवाए बिना नोटिस देना होता है. क्योंकि अगर आप नोटिस देने में समय गवा देंगे तो उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा. तो अब सर बताइए सर, नोटिस की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है? अब मैं बता देता हूँ जो की एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है. पहला ये है कि चेक शुड हैव बीन इश्यूड बाय द पेयर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लिएबिलिटी. आप किसी शादी में गए और एक गिफ्ट चेक के रूप में चेक दे दिया, तो यू कैन नॉट, दोज हु रिसीव्ड दैट चेक कैन नॉट सू यू. समझ गए आप लोग बात को? यानी अगर आपको आपके ससुराल से चेक मिलेगा, एक तो मांगना नहीं है कुछ ससुराल से, जान लो सीधी सी बात को. लेकिन अगर मिल गया तो डिसऑनर होने का केस नहीं कर सकते हो. अच्छा, the check should have been presented or deposited by the payee within the period of its validity. अगर आप उतना दिन तक रखे रह गए कि चेक का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया, then you cannot go and say that yes, I have not been paid. Third is that payee should have issued a notice in writing to the payer within 30 days of receipt of information. जिस दिन से बैंक आपको खबर करता है कि ये चेक जो आपने मेरे जमा किया था वो डिसऑनर हो गया है, उसको मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ इस कारण से, उस दिन से 30 दिन के भीतर आप वो पेयर को आप लिखित सूचना दें कि आपकी द्वारा दिए गए इस चेक को मैंने बैंक में डाला था, बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया, उसने इसका ये कारण बताया है, कृपया मुझे पेमेंट कर दे. और
जो पेयर है उसको आपके नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का समय है. द पेयर शुड हैव फेल टू पे द चेक अमाउंट विद इन 15 डेज. अगर 15 दिन के भीतर आपके चेक अमाउंट का वो पेमेंट कर देता है, देन द होल इशू गोज. यू कैन नॉट यहाँ प्रोसिक्यूट पर हिम. ये पॉइंट है कि आप अपने नोटिस में उसको 15 दिन का मिनिमम समय आपको देना ही पड़ेगा. हाँ, यस. 15 दिन के पहले आप कोई केस भी नहीं कर सकते. आपका नहीं कोई कर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है. आपका कॉज ऑफ एक्शन होगा ऑन द 15th डे. If the payer has not paid the check amount, the payee should have filed a complaint within 1 month from the date of expiry of the grace period of 15 days. उस 15 दिन के एक्सपायरी के 1 महीना के भीतर आपको कंप्लेंट फाइल करना होगा. ये कंप्लेन कहाँ फाइल होगी सर? ये कंप्लेंट फाइल होगी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ, और हम लोगों के यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. अच्छा. इसके लिए माने कोई एफआईआर नहीं कर सकते आप. हाँ, यही मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि आपको थाना में जाके केस करने की जरूरत नहीं, आप कर है. ही नहीं सकते. ही कैन नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 138. क्योंकि हमारा सेमिनार का आज के वेबिनार का टॉपिक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है. अब ये नहीं कि चेक बाउंस हुआ तो सीधा पहुंच के थाने में एफआईआर कराने के लिए. आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, और अब उन्होंने अमेंडमेंट करके इसमें उन्होंने ये ला दिया है कि अगर आप 30 दिन से आपको डिले हो जाता है, आपको 30 दिन के 15 दिन जो समय दिया गया उसके 30 दिन के भीतर आपको कंप्लेंट फाइल करना है. अगर आप 30 दिन में नहीं भी कर पाते हैं, और इफ यू हैव सफिशिएंट रीजन व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड रीजन, देन द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड. जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और वो बीमार होने के कारण उसको पता भी नहीं चला कि उसका चेक जो है वो बाउंस हो गया था, वो केस नहीं कर पाया और वो अस्पताल में था, तो वैसी स्थिति में वो क्या करेगा? उसको मान लेना होगा कि उसका वो पैसा डूब गया? नहीं, उसको ऑप्शन मिलेगा, कानूनी सहायता मिलेगी. ये टाइम लाइन इसलिए रखा गया ताकि लोग बहुत पुराने बाउंस के केसेस को लेकर के ना आ जाएं. लेकिन हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड. तो की इंग्रेडिएंट इसमें ये है कि जो पेई जो 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 पेयर है वो अपने को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए तभी आमंत्रित करेगा जब आपके नोटिस के 15 दिन तक वो उस पर सोया रह जाएगा. 15 दिन के बाद अगर 16वां दिन ही इज लायबल, बट ऑन 14वां दिन उस लायबल नहीं है. मान लीजिए सर किसी ने 1 लाख का चेक दिया था सर. हाँ. और 15 दिन के अंदर में उसने 50,000 भुगतान किया, लेकिन बाकी का 50,000 बाकी रह गया. हाँ. तब क्या वो उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है? तो उसको बाकी का जो आपका बाकी है उसके लिए करिएगा. कर सकता है. डेफिनेटली. In pursuance of notice, he paid me 50,000. 50,000 is still unpaid. You certainly can move him. अब जो जिनको इसमें पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट वुड बी 2 years imprisonment और a fine और both. सर यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है सर, हम लोग आगे की पनिशमेंट पे जाए उसके पहले, कि नोटिस जो लिखा जाएगा, क्या वो नोटिस लिखवाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को किसी लॉयर के पास जाना होगा? नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. क्या हमारे स्टूडेंट खुद से नोटिस लिख सकते हैं? खुद, नॉट ओनली योर स्टूडेंट्स, एनीबॉडी कैन राइट हिमसेल्फ. तो उस नोटिस में क्या लिखाता है, बता दीजिए सर. उस नोटिस में बहुत ही सिंपल लिखना है. जिसने आपको चेक दिया है उनके नाम से एड्रेस करना होगा, और उनको ये लिखना होगा कि आपने मुझे जो आप बता रहे थे घर ही खरीदने गए या इसके बदले इस प्रोडक्ट के लिए आपने मुझे पेमेंट किया था चेक के माध्यम से, या आप लोन ही लिए थे, आप लिएबिलिटी हो गया, आप हमसे फ्रेंडली लोन भी ले सकते हैं. पैसा लिया था, बदले में चेक दिया था. चेक दिया था हमने, हाँ, बदले में चेक दिया था. तो and as I presented this check within the period of its validity to the bank has returned me the check saying bank उसमें एक slip देता है. Now that earlier that was not considered to be an evidence. Now by amending the act, it has been said that would be treated as a valid evidence. पहले बैंक मैनेजर को जाके गवाही देना पड़ता था कि yes he presented the check or it has been returned unpaid. Now his slip will do that. और वो स्लिप उनको लगा दीजिए कि बैंक इसको रिटर्न कर दिया है, सेइंग कि सफिशिएंट फंड इनके खाते में नहीं है. इसीलिए आप 15 दिन के भीतर हमको इस चेक राशि का भुगतान कर दें, वरना मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा.
यही नोटिस होगा। अगर वो आपको आके 15 दिन के भीतर में दे देते हैं, ठीक है, 16वां दिन आप उन पर मुकदमा कर सकते हैं। मैं सर एक बार स्टूडेंट्स को वो लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं हाँ अभी दिखा पाऊंगा, एक सेकंड सर, मुझे आप समय दीजिएगा सर। हाँ हाँ एक सेकंड। स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप लोग? सर आप देख पा रहे हैं सर? हाँ, एक्सिस बैंक। हाँ, हाँ ये एक्सिस बैंक का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक ये स्लिप है, ये चेक रिटर्न एडवाइस आप देख रहे हैं इसको। हाँ सारे स्टूडेंट देख पा रहे होंगे। हाँ हाँ। और आप देखिए इसमें कई सारे रिटर्न हैं, कई कई सारे रीजन हैं इसमें हम्म कि ये किस कारण से रिटर्न हुआ है। तो जो नंबर 7 रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है वो है इनसफिशिएंट फंड का। ये हम्म। सबसे कॉमन रीजन होता है, क्योंकि जब आपके खाते में पैसा कम है और आपने चेक काट दिया, दे दिया, आपने जैसे सर ने बताया कई बार लोग लोन लेते हैं और ये बहुत प्रेवलेंट है कि किसी ने किसी से लोन लिया, 10,000 का लोन लिया, 50,000 का लोन लिया और बदले में 1 महीने के बाद के डेट का चेक दे दिया कि मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, आपके पास मेरा चेक है। और यह जब कोई लोन देता है तो कई बार अपनी सुरक्षा के लिए वो चेक रख लेता है कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, मैं आपकी मेरी सुरक्षा क्या रहेगी, तो मैं आपसे चेक ले रहा हूँ। अगर आपने 1 साल का लोन दिया है तो 1 साल के बाद के डेट का वो चेक काट के दे देते हैं और उसी तरह से वो लोन ले लेते हैं। और अगर फिर कल को जब वो लोन वापस नहीं करते हैं तो वो पार्टी क्या करती है कि वो चेक को बैंक में जमा करती है और उसको कोशिश करती है कि पैसा बैंक से या तो मिल जाए और नहीं मिले तो पैसा चेक वो बाउंस कर जाए। अगर चेक बाउंस भी कर जाएगा तो भी उनके पास में अधिकार होगा कि कानूनी रूप से वो अपने पैसे की वसूली के लिए अपने राइट्स को एवेल कर सके। तो ये देखिए कि चेक रिटर्न का एक आपके पास इस तरह का एक स्लिप है जो बैंक देती है। और जैसा कि सर ने बताया कि अब इसको एक प्रमाण के रूप में, एक सबूत के रूप में कोर्ट में सबमिट किया जाता है और इसको ये आपको इनफैक्ट लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना वो केस दर्ज होगा ही नहीं। पहले इसके लगाने के बाद भी बैंक के ऑफिसर्स को गवाही देना पड़ता था। हाँ, अब उससे फुर्सत मिल गई है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा मैं आपका कहना चाहता था कि उसमें जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 139 में इसका प्रोविजन है कि जब भी आप चेक साइन करते हैं और आपने हमको चेक दिया है तो ये माना जाएगा कि यू हैव गिवन द चेक इन डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ और लिएबिलिटी। आप आपको ये प्रूफ करने का या एविडेंस देने का जरूरत नहीं है कि हमने ये डेट और के लिए लिएबिलिटी के लिए दिया था। बट द accused wish to say that no, it has not been given to me for debt or discharge, then he will have to give evidence and he will have to show that no, it was not. The complainant is not required to give evidence to that effect. That is the presumption. सर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्यूज का एक्सक्यूज क्या होता है? एक्यूज अगर इस प्रिजम्पशन को रिबर्ट कर पाता है कि जो आपने चेक दिया था वो एक्चुअली उनके बेटा के शादी में आपने गिफ्ट दिया था। अच्छा। या आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कभी आप कभी कोई तरह का डील नहीं किए हैं। वो अगर जाते हैं कि मैं इनसे राइस बैग खरीदता था, मेरे पास एक केस है उसमें राइस बैग्स परचेज होता था और वो कभी कैश भी देते थे और कभी चेक भी देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जो भी लिया इनसे राइस सारा देखिए ये मेरे पास बिल्स है, मैं पैसा देते गया और ले लिया, ये कहाँ से चेक ले आए मेरे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपका चेक पर दस्तखत है तो मैं ये मानूंगा कि आपने इनको दिया है। और वो जो दे रहा था, वो जो रिसीट इशू करता था वो लिखता था कि रिसीव चेक सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसमें आपको ने जो रिसीट दिया है उसी में इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन है, तो आप ये जो कैश दे के रहते तो रियलाइजेशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो यहाँ पर कई बार एक्यूज ये भी अपना प्ली लेते हैं कि मेरा चेकबुक खो गया था या मेरा चेक खो गया था, डिसऑनर के केस से बचने के लिए। हाँ, इस पे उनको क्या रिलीफ हो पाती है? तो ये उनका मेरा चेक खो गया था ऐसा कहने से उनका काम नहीं तो सब कह देगा ना। unless you bring convince put direct evidence to the effect। सपोज करें कि चेक खोने का आप चेक जो इशू किए हैं उससे 2 महीना पहले का आप बैंक को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ये चेक मेरा खो गया है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एविडेंस कि ये चेक जारी करने के पहले अगर कर दिए हैं, आप इन्फॉर्म कर दिए हैं।
इसलिए आपको डायरेक्ट एविडेंस से उसको रिबट करना पड़ेगा. दैट वुड बी प्रिज्यूम्ड, बट यू कैन रिबट दैट प्रिजम्पशन बाय गिविंग डायरेक्ट एविडेंस. या जो अक्यूज है वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो सर्विस हमने ली थी वो सर्विस पूरी नहीं हो पाई, उसमें डिफेक्ट था, उसमें प्रॉब्लम था, या जो प्रोडक्ट था वो हमने रिटर्न कर दिया, इसके लिए हमने चेक बाउंस किया. दैट आप प्रोडक्ट उनको रिटर्न कर दीजिएगा, देन क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. देन आप वो उसने भी कहा था कि इन्होंने मुझसे चेक लिया था, और अब बहुत सा केसेस में होता है कि सिक्योरिटी के लिए चेक ले लिए, सामान दे दिया और मैंने बाद में इनको पैसा दे दिया और इन्होंने चेक नहीं रिटर्न किया. ये अक्सर होता है. वो सर्कमस्टांसेस को कोर्ट एडजुडिकेट करती है कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रोबेबल है कि नहीं. अब ये इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं देखना है, लेकिन इसको देखना है कि जो एक कॉमन मैन आपके वर्सन को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट्स किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम्म, इनके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो इनके पास पहले चेक जमा करेंगे कंपनी में. हम्म, कोई या ये खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो हम्म, जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट बेचेंगे वो कंपनी इनसे चेक लेगी हम्म, और रेगुलर लेवल पर चेक लेती रहती है, और उसके हम्म, बाद फिर बोलती है कि आप अपना ऑर्डर दीजिए और हम्म, पेमेंट भेजते जाइए. अगर हम्म, वो कंपनी चेक बैंक में लगा दे तो हो हम्म, सकता है चेक रिटर्न कर जाए. हम्म. तो आप अगर उस चेक अमाउंट का आप दिखा दीजिएगा कि ये दिस हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो आपका आपका वो प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगा. दैट प्रिजम्पशन would be reverted. Instead of returning me the check, he went to the bank and presented it. So that will. अब आप राइस बैग्स खरीदे और आपने चेक दिया और उसमें लिखाया कि सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक अमाउंट. सर एक और सवाल मेरे पास बच्चे का आया है, छात्र का. हम्म आई थिंक इसका नाम है तुषार कुमार, हम्म तुषार कमल. हम्म Sir, if the receiver is not able to go to the concerned authority to draft a complaint, हम्म. so in this case, can anyone else go and file a complaint on behalf of the receiver, or anyhow the receiver has to go on whose name the check has been issued? Complaint has to be filed on his behalf. His close relatives can file it. His But son can file. His wife can file. These kinds of things. And if it is a company, the manager can file. माने कि अगर कंपनी है तो कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन है वो कंपनी के बिहाफ में केस फाइल कर सकते हैं. डेफिनेटली. जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए सिमेंट संस्थान है और हमको किसी ने चेक दिया, हम और बाद में उन्होंने चेक बाउंस हो गया उनका, हमसे कोई सर्विसेज ली, हमसे कोई प्रोडक्ट लिया, तो हम चाहें तो हम खुद करें या हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का जो ऑथराइज पर्सन है वो करे. Not only that, if your father has received a check which was returned unpaid, in the meanwhile your father died, so you can file a case. जो भी लीगल हेयर है, जो भी लीगल हेयर है, ये right. Or even when I'm here, I'm not in a position to go to the court. He's right in saying. इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी बताना And he चाहूंगा, can जैसे मान authorize somebody to move on his behalf. सर एक यहाँ पे एग्जांपल आपको और भी दूंगा तुषार. जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी का कोई केस जो है वो दिल्ली का है और दिल्ली में आपकी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आप दिल्ली के किसी लॉयर को ऑथराइजेशन दे सकते हो और वो वहां पर आपके बिहाफ में केस फाइल कर सकता है. अच्छा, और ये एक चीज है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर बैंक में आप प्रेजेंट किए हैं वहीं केस फाइल करें, या जहां पर चेक इश्यू हुआ है वहीं पर फाइल करें. आप इस जहां जहां पर कुछ भी हुआ है उस संबंधित अगर ट्रांजैक्शन हुआ है जहां पर वहां पर भी कर सकते हैं. हाँ, आप अपने रेसिडेंट, आप जहां परमानेंटली रहते हैं वहां कर सकते हैं. जहां ये एग्रीमेंट, जहां आप चेक आपको दिया गया है, सपोज कीजिए कि आपको मोहाली में चेक दिया गया and you are a resident of Patna, you can file a case at Mohali and you can file a case as Patna as per your convenience. And if the bank Bangalore mein hai, to you can go to the Bangalore also, or you can file something if the it has to be some connection with the place where you are moving. समझ गए बात को. अब अभी एक रीसेंट कंट्रोवर्सी इसमें आया है. अभी
कि एक कंपनी जो कि लिक्विडेशन में है, वो बैंकरप्सी का उसका पेंडिंग है, उस समय में मोरेटोरियम रहता है कि कोई दूसरा प्रोसीडिंग जब तक वो उसका बैंकरप्सी कोर्ट में डिसाइड नहीं हो जाता है, मोरेटोरियम पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर कोई चेक बाउंस करके उसके ऊपर केस हो गया तो क्या चेक बाउंस का केस चलेगा या नहीं चलेगा? अभी तो मोरेटोरियम सब जगह लगा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एस्पेक्ट। अभी बहुत ये मोरेटोरियम तो अभी का है, बट ये जो मोरेटोरियम वो बैंकरप्सी से कंसर्न था। तो उसमें अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हाँ कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने कह दिया है कि चूंकि ये जो 138 का प्रोसीडिंग है, इट इज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मोरेटोरियम विल अप्लाई टू अ सिविल प्रोसीडिंग, but it is a criminal proceeding, therefore it will not apply to it and check bounce can be। अब उसके खिलाफ अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और ये तर्क दिया जा रहा है कि ये क्रिमिनल नेचर का प्रोसीडिंग इसलिए बनाया गया कि लोग जेल जाने से डरें और चेक बाउंस का केस कम हो। प्राइमरीली इट इज ए सिविल प्रोसीडिंग, और बैंकरप्सी के टाइम में जहां पर कि क्रेडिटर्स का सबका राइट डिसाइड करना है और आपका चेक बाउंस करके आप अपना पेमेंट लेके चले जाइएगा, तो दैट विल अफेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। So therefore, even if there is a case of check bounce and even if there is a time period prescribed, it will wait till the bankruptcy court। यहाँ पर देखो एक पॉइंट तुम लोग के सर बता रहे हैं कि अगर जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, जो चेक को राइट कर रहा है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसकी बैंकरप्सी की इंफॉर्मेशन बैंक को है और बैंक उसके सारे पेमेंट्स को रोक रही है, तो वैसी स्थिति में उसके ऊपर में डिसऑनर का प्रोसीजर नहीं हो सकता है। अगर वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसने चेक राइट किया हुआ था, तो वैसी स्थिति में उसके ऊपर में डिसऑनर का प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। अगर वो व्यक्ति इंसेन हो जाए, अगर वो पागल घोषित हो जाए, तो उसके राइट किए हुए चेक के ऊपर में डिसऑनर की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। आई थिंक आई एम राइट सर? यस यस यस, घोषित हो जाए तब तो बात दूसरा हो जाएगा, घोषित होने का प्रोसीडिंग भी अगर पेंडिंग है, हाँ, तो भी नहीं हो सकती है, तो भी नहीं हो सकती। अब ये मत करना कि चेक जहां तहां जारी करके अपने आप को पागल घोषित कर देना। मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रोसीडिंग था क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, उसमें 2 बार उसके बाद 1988 के बाद मेजर अमेंडमेंट 2002 और 2018 में हुआ। 2002 में उन्होंने इसको और स्पीडी ट्रायल करने के लिए नोटिस के प्रोसीजर को ये कर दिया, समरी ट्रायल हो सकता है। और उन्होंने 2018 में जो अमेंडमेंट किया है उसमें इन्होंने किया है कि आपका प्रोसीडिंग, आप चेक बाउंस के लिए केस किए हैं, केस पेंडिंग है, तो ट्रायल कोर्ट को ड्यूरिंग पेंडेंसी 20% अमाउंट आपको इंटरिम कंपनसेशन देने का ऑर्डर देने का उन्होंने पावर दिया है। सर लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, कि इतना कानून को सख्त किया गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इसमें लाई गई, जेल भेजने का प्रावधान किया गया और पेनल्टी भी लगाई गई है इसमें, जिसमें कि आपको जितना अमाउंट था उससे ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें होने के बावजूद आप देखेंगे कि चेक को लेकर के जो अपराध है, बढ़ रहे हैं, चेक को लेकर के जो क्रिमिनल और जो लापरवाही है, हाँ, दोनों चीज आज भी विद्यमान है। आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत सारा पोस्ट डेटेड चेक जारी करके लोगों से पैसा उठाती है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट में चेक दे करके अपना वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उसके बाद वो चेक को लेकर के लापरवाह होते हैं। तो हाँ। इस कानून में अभी भी क्या कमियां हैं, कैसे लोग बच पाते हैं, इसमें बच जा रहे हैं? वो वही है, वो है क्या कि अभी भी लोग इसी को सख्त, इसी को जो बार बार अमेंडमेंट किया गया, पहले से इसको लाने की जरूरत ऐसे नहीं थी नॉर्मली, क्योंकि क्रिमिनल प्रोविजन था 406 420 में, लेकिन आईपीसी के किसी भी धारा में यहाँ पर मुकदमा होता है तो उसमें आपको दोष सिद्ध करने के लिए बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा, और लोग कुछ ना कुछ ऐसा रीजनेबल डाउट क्रिएट कर देते थे, लोग एक्विट हो जाते थे। उसी के लिए इन्होंने पहला कदम लिया कि यहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को हटा के कहा कि प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर होगा। अगर एक रीजनेबल आदमी को लगता है कि नहीं ये घटना जरूर घटा है तो उसको सजा होगा, वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
और दूसरा आईपीसी के सेक्शंस में क्या होता था कि मेंस रिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इंटेंशन टू कमिट क्राइम। तो पहले आईपीसी का कोई सेक्शन में आप मुताला कीजिएगा तो हम लोग बहुत सा 406 420 का केसेस सीएनएफ वगैरह का हम लोग यहाँ क्वाश कराए हैं, जहाँ हम लोग कहते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन पाइएगा तभी हमको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें उसको हटा दिया, आपका इंटेंशन क्या था इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने डेट और लिएबिलिटी के लिए ही चेक इशू किया है। एक स्टेप्स उसने लिया, एक स्टेप वहां लिया उन्होंने, फिर सेकंड स्टेप्स उन्होंने लिया कि इसमें बहुत टाइम लगता था, उन्होंने टाइम फ्रेम किया कि 6 महीना के भीतर खत्म कीजिए, डे टू डे हियरिंग कीजिए। इससे केस घटे हैं लेकिन कम नहीं हुए। अभी भी चेक बाउंस का केस 38 से 40 लाख केस पेंडिंग है इंडिया में। अच्छा, 40 लाख केसेस चेक बाउंस के जुड़े हुए अभी पेंडिंग है? अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक सवाल आ रहा है उत्तम चौबे का, ये बीबीए के छात्र है शायद, 4th सेमेस्टर में। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं उत्तम को माइक उसका ऑन करता हूँ। उत्तम अपना कैमरा ऑन करो। उत्तम अपना कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूँ। Yes, you can ask a question. Sir, my question is what are the precautions we have to take care when we are receiving a check from an unknown customer? You have to make it clear that one precaution you can do, that if he has given a check and you have to give something in return, then you can ask him what the normal businessman does, that yes, I will do this after realization of the check. Suppose I purchased some books and I issued a check. The bookseller tells me, yes, I will deliver the book, but once the check is encashed. समझ गए? सबसे पहला पॉइंट that would be the best way to check क्या है? Check is a promise to pay. चेक इज बेसिकली प्रॉमिस टू पे। आपने उसको दिया कि देखिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये बैंक में जाइए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब आप बैंक में गए और आपने चेक जमा किया और पेमेंट नहीं मिला, तो प्रॉमिस टू पे तो फेल हो गया। तो जब प्रॉमिस टू पे फेल हो गया तो डिलीवरी कोर्ट में चक्कर लगाते रहिए। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी चेक बेस्ड ट्रांजैक्शन हो तो वहां पर आप डिलीवरी को रियलाइजेशन से जोड़ दें। जब चेक रियलाइज हो जाएगा वहां से आपकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। चेक रियलाइज नहीं हुआ तो डिलीवरी भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। समझ रहे बात को? जो भी एग्रीमेंट आपने किया है उस एग्रीमेंट में अगर चेक मेंशन होता है, जैसे कई बार आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, आप कोई किराए पे जगह ले रहे हैं, आप एग्रीमेंट में चेक नंबर लिखते हैं और चेक के साथ बताते हैं कि आप इतना रुपए किराया दे रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं। कंसिडरेशन जो आप लोग अगर एग्रीमेंट को पढ़ते होंगे, लॉ ऑफ एग्रीमेंट को पढ़ा है ना आपने एग्रीमेंट को, तो एग्रीमेंट में आपने कंसिडरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और अगर वो कंसिडरेशन में चेक है और वो चेक ही बाउंस हो गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट जो है वो स्टैंड करेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो गया। समझ रहे मेरी बात को उत्तम? और बाकी सर जो तुमको ये उपाय दिए हैं, ये उपाय हर जगह लागू नहीं होगा। बिजनेस में बहुत जगह पर, ज्यादातर जगहों पर चेक के ऊपर में काम करना पड़ता है। और चेक जो होते हैं कई बार आपको 1 हफ्ता बाद का होता है, 2 दिन बाद का होता है, डिलीवरी पहले करनी पड़ती है। तो चेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और उसके ऊपर में हजारों लाखों करोड़ का कारोबार होता है। बिजनेस डीलिंग्स में क्या होता है कि मेरा बुक सेलर कभी आता है, कहता सर एक नया किताब आया है, हमको लेने का मन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ कि छोड़ो अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं लूंगा। बोला सर एक चेक दे दीजिए ना पोस्ट डेटेड, मैं किताब छोड़ देता हूँ आपके पास। he gives that option, he pressurizes me to give क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस को बढ़ाता है और क्रेडिट का बेस बनता है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इसलिए चेक को हम लोग बिल्कुल अभी तक हमारी जो बातचीत हो रही थी, इस बातचीत का लबोलुबाव ये बन रहा था कि चेक बहुत ही खतरनाक चीज है और चेक के ऊपर में कारोबार करना जो है ये बहुत खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कारोबार बैंकिंग पे होता है, कारोबार चेक के ऊपर में होता है और पार्टियां एक दूसरे के ऊपर भरोसा करती हैं। चाहे वो बड़ी कंपनियां हो, जो बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनियां हैं वो भी भरोसा करती है,
अपने डीलर्स पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, वेंडर्स पर, सप्लायर्स पर, कॉन्ट्रैक्टर्स पर, और छोटी कंपनियां भी करती हैं बड़ी कंपनियों के चेक के ऊपर में भरोसा। आप समझे मेरी बात को? इसलिए हमें चेक को जो है उसका ड्यू क्रेडिट देना होगा, और लोग आसानी से अपने चेक को बाउंस होने देना नहीं चाहते हैं। कोई भी अच्छी फर्म जो है, कोई उसके भी क्रेडिबिलिटी को, उसका ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म होता है उससे। बिल्कुल। इसलिए चेक की बहुत कीमत है। चेक को कोई हम कागज का टुकड़ा मान लें, ऐसा नहीं है। चेक अपने आप में किसी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय होता है, और आप बिल्कुल चेक के ऊपर भी कारोबार कर सकते हैं। आपको असेसमेंट करना होता है कि हम किसका चेक ले रहे हैं, इस चेक को लेने में हमको क्या सावधानी बरतनी होगी। और कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल रूल डिफाइंड होते हैं, बिल्कुल रूल डिफाइंड होते हैं चेक्स को लेकर के। तो इसलिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल को देखना होगा। अगर आप खुद ही मालिक हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको रूल डिफाइन करने होंगे कि क्या रूल है आपके लिए। और हो सकता है कई बार कुछ लोगों के चेक आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, ये मानते हुए कि वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऐसी है कि वो चेक बाउंस अपना नहीं करेगा। और अगर वो बाउंस करेगा तो उससे आपको प्रोसिक्यूशन में जाकर के लेने में कहीं कोई सुविधा भी नहीं होगी। प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड में तो अब ये भी हो गया है कि आप अकाउंट में जमा करके रिसीट दीजिए। हाँ? या आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वो तो इंटरनेट रियलाइज है बैंकिंग सर, वहां तो वो तो प्रॉमिस टू पे नहीं है, वो तो रियलाइज्ड है। रियलाइज है। इसलिए these instances are reduced considerably नेट बैंकिंग through ने this काफी कुछ कम कर दिया है। काफी कुछ कम कर दिया है। हम लोग जितने कॉलेजेस में पे करते हैं यहाँ घर से, मेडिकल कॉलेज में हो या स्कूल में हो, या उनको पे करके उनको रिसीट उनको मेल कर देते हैं। नहीं, ये लोग जानते हैं ना, ये लोग चेक से पेमेंट कर ही नहीं सकता इस इमेज में। इधर नहीं लेता है ना। हम चाहें कि एक चेक दे दें पीएमसीएच में, तो नहीं लेगा वो। हाँ, वो he has only mode of payment is that you go to the state bank collect and you pay चालान, चलान। या तो चालान लेंगे, कई जगह पे डीडी लेंगे, कई जगह पर कैश अब काउंटर वो होंगे। डीडी भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि गिव मी द रिसीट अलोंग विथ योर हार्ड कॉपी ऑफ द फाइल। तो ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स बनते हैं, लेकिन आज भी चेक के ऊपर में हजारों नहीं लाखों करोड़ का कारोबार होता है। और क्रेडिट, जो हमने बात की कि कई जगह लोन देने के लिए भी लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं, वह चीज भी आज भी बड़ी मात्रा में होता है। चाहे वो, मैं यहाँ यूट्यूब पर लाइव हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कई बार कैश लोन जो होता है, जिसको कि लोग जो व्हाइट इकोनॉमी है वहां पर यूज नहीं करते हैं, वहां पर भी ऐसा होता है कि जब आप किसी से 1 लाख रुपए का नगद में लोन ले रहे हैं, वो आपसे 1 लाख का चेक ले लेगा और आपको 1 लाख का लोन दे दिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस में, व्यापार में। और जब आप लोग कारोबार में आएंगे, जब आप किसी इंडस्ट्री में आएंगे, जॉब में आएंगे, तो आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। Practical aspect is a different. Legal aspect, so far as is concerned, if somebody has given you the check and it has been dishonored, then you have some legal remedy. And the legal remedy is by way of criminal prosecution. You have other remedies. You can go to the civil court, filing a suit seeking compensation, damages, etc. You can file a case under 406 and 420 IPC. Those proceedings will continue, but exclusively along with those proceedings, you can move for dishonor of check under the NI Act. वैसे ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो काफी बड़ा है, चेक इसका एक एस्पेक्ट है खाली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली क्या है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस हैपेंस टू बी थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. So what are those negotiable instruments? What are its meanings and how does this operate? What are its characteristics? Those things are there in Negotiable Instruments Act. But then specific is that check is probably bills of exchange, promissory note that have reduced, marginalized issuance of those. Checks still are issued in very large quantity, large numbers. यहाँ पर इसलिए समझना होगा कि ये जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आज भी, जैसे हम लोग अगर नीरव मोदी का केस देखेंगे, याद करिएगा आप लोग, तो नीरव मोदी के केस में जो लेटर ऑफ क्रेडिट था, लेटर ऑफ इंटेंट था, उसके बेसिस पर इतना बड़ा वो बैंक फ्रॉड हुआ। इसलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ये आज भी पॉपुलर हैं, इन पर आज भी काफी काम होता है और एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में है। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑफ देम इन छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या एक साधारण आदमी भी हो, कई बार आपसे कोई आपके मित्र आएंगे, बोले कि देखो मैं एक चेक दे देता हूँ, मुझे कैश की जरूरत है। अभी अब आजकल तो वो कम हो गया है, अभी तो बैंक अब मंडे को खुलेगा, आज सैटरडे हो गया है, तुम मंडे को अकाउंट में से पैसा ले लेना,
अभी मुझको कैश दे दो. अब मंडे को बैंक में जाइएगा, you will not be paid because there is no money in his account. नहीं, अब तो लोग बोल देते हैं ना कि भाई जाके एटीएम से निकाल लो. अब तो बोल ही देता है, बट इस ऐसा होता था कुछ दिन पहले तक. बिल्कुल होता था. So with this digital और प्लास्टिक मनी और whatever it is called इलेक्ट्रॉनिक मनी, इससे काफी कुछ राहत हुआ है. अच्छा, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आप में से बताइए, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? कौन बता सकता है? What is a post dated check? I don't think I have asked a difficult question. Those who want to answer, please raise your hands. ये सर प्रिया गुप्ता सर. प्रिया गुप्ता. अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या क्या क्वेश्चन है? Sir, may I? yes. Yeah, you can ask your question. Sir, no, sir. I'm about to answer the post-dated check. Acha, right. Yes, you can. So, when we write a check on a future date, that we can जब हम लोग कैश निकाल सकते हैं एक फ्यूचर डेट, जब चेक पर हम लोग फ्यूचर डेट लिख कर देते हैं कि उसी डेट पर हम लोग उसको विथड्रॉ कर सकते हैं. You are right. The check will not be encashed unless that before that date. Yes, sir. So, though check has been handed it over to him, but it is of no use because the date given is something of later on. पोस्ट डेटेड चेक को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास किसी ने पोस्ट डेटेड चेक दिया है तो वो उसका मतलब ही यही है कि वो फ्यूचर डेट पर उसको आप बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं. And if you go to the bank and presents your check, the bank will return you, but you cannot proceed under section 138. बीकॉम के स्टूडेंट है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं. बोलो. Yes, sir. Can we see the answer of post-dated check? बताओ बेटा. So a check bearing a letter date than the one on which it is actually issued. Very It is good. called the post-dated check. Correct. So happy. Ma'am, you want to say something? सोनी मैम, आप लॉ आप भी पढ़ा रही हैं क्या? Yes, sir, and I'm so happy that both the students had given the right answer, sir. Future date में जिसको पे करेंगे, yes, sir. अब आप कुछ सवाल जो बच जा रहे हो डिसऑनर ऑफ चेक से जुड़े हुए, आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं. हाँ सर. सर, अगर कोई चेक गलत तरीके से मिल गया हो, जैसे कि मैंने वो चेक किसी संस्था के नाम से इशू किया हो या किसी पर्टिकुलर आदमी के नाम से, सॉरी, बेयरर के नाम से इशू किया हो, लेकिन अगर वो किसी और को मिल जाता है तो क्या उस केस में डिसऑनर ऑफ चेक हो सकता है अगर इनसफिशिएंट फंड है अकाउंट में? तो insufficient fund होने से, but the only the payee can move. Yes, the sir. check is in my name, and if Neeraj sir presents it in this image account and check is returned, that नहीं, लेकिन अगर वो बेयरर चेक है सर, तो जो वो बहुत रिस्की होता है, तो जो डेंजर है बेयरर चेक में वो भी है क्या? बेयरर चेक always has a payee ना. बेयरर चेक में उसका नाम रहेगा. It has to be paid to whom the name is given. अगर वो सेल्फ चेक है तो कोई केस हो ही नहीं सकता है. कोई नहीं हो सकता. There is no question of any prosecution. ओके, तो बेयरर चेक में भी जो पेई है सिर्फ वो कर सकते हैं. Only payee. बट अगर उसमें फंड है तो कोई भी उसको इनकैश कर सकता है. Three persons. One is the drawer or the payer. One is the payee, and bank is the drawee. So it is drawn from a particular bank, and you have to present in that bank. Instead of a state bank, you go to the United Commercial Bank. Then Commercial Bank has to send it to the state bank, and the state bank will clear the check, not the United Commercial Bank. So these three has to be there: payee, payer, and this drawee.
यानी कि payee has a right to move. अगर कोई बियरर चेक का जो सवाल पूछ रही है सोनी मैम, कि अगर कोई बियरर चेक लेकर के जाता है काउंटर पे पेमेंट लेने के लिए और वहां से उसको रिटर्न किया जाता है कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो वो डिसऑनर ऑफ चेक के प्रीव्यू में नहीं आता है। डिसऑनर ऑफ चेक के प्रीव्यू में तभी आएगा जब आप अपने बैंक खाते में उस चेक को जमा करते हैं और आपके खाते से वो चेक जो है वो जो पेई के खाते में जाता है और वहां से उसको रिटर्न किया जाता है। अब एक चीज आप लोग ऑफेंस बाय कंपनीज भी जान लीजिए, बिकॉज यू वुड बी गोइंग टू सम और द अदर कंपनी, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, द प्रोविजन इज देयर इन सेक्शन 141 and it says that if the person committing an offense under section 138 is a company, every person who at the time of offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. इसलिए जो भी कंपनी एज वेल एज द पीपल इन चार्ज ऑफ दैट बोथ आर सपोज टू बी प्रोसिक्यूटेड, और केवल आप उन लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और कंपनी को छोड़ दिए हैं, योर प्रोसिक्यूशन विल फेल। बोथ हैज टू बी। प्रोसिक्यूशन है उसको थोड़ा बताइए, प्रोसिक्यूशन में क्या-क्या प्रोविजंस हैं? प्रोसिक्यूशन में आपको मैंने बताया, पहला तो ये है कि आप चेक को बैंक में प्रेजेंट करिए। Somebody has issued a check and you are keeping it in your drawer, that will not make any offense. You present it to the bank. If it is paid well and good, there is no problem. If the bank problem arises, if the bank returns it to you, the moment bank returns it to you, you are supposed to give the payee a notice. That gives an opportunity to the payee to correct his mistake. If it was a bona fide mistake or for some other, कभी-कभी होता है कि किसी बिजनेस कंसर्न को आज ड्राफ्ट बनाना है 3 लाख का, और 3 लाख देखा कि अकाउंट में है, बना लिया, और जो पैसा नहीं जमा हो सका, आपका चेक जो है बाउंस कर गया, तो वो अगर ऐसा सिचुएशन है, he may correct himself that from 15 days time is given to him, up to within 15 days, then also the nothing will arise. But if he sits over it beyond 15 days, then he is liable to be proceeded. And liable to be proceeded यहाँ पर एक गलती मैं बताऊं जो छात्र अक्सर जो फिनांस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, कि अगर वो अपना बैंक को बिल्कुल रिकंसाइल करके नहीं चल रहे हैं, जो भी उनका बैंक स्टेटमेंट है, तो जैसा सर ने कहा कि 3 लाख का चेक काटना था और अकाउंट में चेक किया 3 लाख था तो चेक काट दिया, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में जब आपने बैलेंस चेक किया, चाहे पासबुक में जाके चेक करवाया, पासबुक अपडेट करा के चेक कराया, या फिर ऑनलाइन चेक करके देखा, तो आपको मालूम पड़ा कि 3 लाख है और आपको 3 लाख का चेक काटना था, तो आपने 3 लाख रुपए का चेक काट दिया कि भाई आपके अकाउंट में 3 लाख से ज्यादा पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भूल गए कि शायद आज से 1 महीना पहले आपने कोई 25,000 का 50,000 का ऐसा चेक काटा था जो अभी तक आपके अकाउंट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। और अगर वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है और अब उसके प्रेजेंट होने से अगर आपका बैलेंस 3 लाख से कम हो जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने 3 लाख देखा है, 3,10,000 है, आपने 3 लाख का चेक काट दिया कि भाई 10,000 का मिनिमम बैलेंस है हमारा और 3 लाख रुपए का चेक हम काट सकते हैं। और इन द मीन टाइम पीछे से वो जो चेक आपने 25,000 का पहले कभी किसी को दिया था, वो चेक वो जमा नहीं कर पाया था, वो चेक अब जमा हुआ और अब वो खाते में अपीयर किया और उसने आपके बैलेंस को घटा दिया, और अब जब वो 3 लाख वाला चेक उसके पीछे पीछे बाद में आता है तो वो डिसऑनर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपका इंटेंशन खराब नहीं था लेकिन चेक फिर भी डिसऑनर हो गया। तो यानी यहाँ पर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आप प्रेजेंट बैलेंस को देख करके चेक नहीं काट सकते हो। आपके पास पूरा अपडेटेड बैलेंस होना चाहिए। जो चेक आपने आज तक काटे हैं, भले वो चेक आपके अकाउंट में अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं, लेकिन वो आ सकते हैं क्योंकि आपने वो आपके अपनी बैलेंस, आपके अपनी टैली में, आपके अपने कंप्यूटर अकाउंट में दिखाई पड़ेगा। वो हो सकता है बैंक के पासबुक में तो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक में अभी तक वो चेक आया नहीं है। तो अगर, या फिर मान लीजिए कि आपके बैंक में 11,000 रुपए हैं और आपने जो है 10,500 का चेक काट दिया और कोई पुराना चेक भी नहीं काटा हुआ था आपने, लेकिन बैंक अपना कोई एनुअल चार्ज काटता है, कोई अपना एनुअल आपके ऊपर में कोई तरह का कोई उसका बकाया था, कोई तरह का उसका कोई एक्सपेंसेस था, वो उसने बैंक ने आप पे लेवी किया और आपका जो बैलेंस है वो 10,500 से कम हो गया। अब क्या होगा, या आपकी कोई ईएमआई आ गई जो आती है हमेशा एक खास समय पर, वो ईएमआई आ गई,
आपने म्यूचुअल फंड का एसआईपी लगाया हुआ था, वो एसआईपी कट गया, आपको पता ही नहीं था कि वो एसआईपी कटने वाला है, कब कटने वाला है, वो एसआईपी कट गया और उसके बाद वो चेक आ गया, वो डिसऑनर हो गया। आप समझ रहे मेरी बात को? तो फिर बड़ी डांट पड़ेगी बॉस से आपको कि भाई तुमने ऐसे कैसे चेक काट दिया कि चेक बाउंस हो गया। तो आपको इन सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कोई बिजली का बिल जो है वो हर महीने किसी खास तारीख को कटता है अकाउंट से, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल कटता है आपके अकाउंट से, और जब वो कटता है उसके ठीक पहले आपने बैलेंस देखा और आपने चेक काट दिया, वो तो ऑटो डेबिट कर लेता है क्रेडिट कार्ड। हाँ, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो बिना गलती के भी आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, जो कि कई बार हम लोग को भी महसूस हुआ, हमारे साथ भी हुआ, कि बैंक में बैलेंस भी है, सब कुछ है, और फिर भी चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने उसमें लिख दिया कि वो इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यानी बैंकर से भी कभी कभी गलती हो जाती है। उन सारी चीजों को आपको तुरंत से देखना होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी होती है, और तुरंत जो पार्टी है जिसका चेक रिटर्न हुआ है, जिसको आपने चेक दिया था वो रिटर्न हो गया, उसको आपको सब कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये चेक आखिर रिटर्न क्यों हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर अब कोई सवाल किसी छात्र का हो तो हम लोग उस सवाल को लेंगे, अन्यथा हमारे पास समय जो है वो अब बच नहीं रहा है। एक चीज मैं सिर्फ और मैं बताना चाहता था, ये जो ऑफेंस है 138 का, ये कंपाउंडेबल है। आपने मुकदमा कर दिया, लेकिन अगर जिन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया है, जो चेक बाउंस करा दिया है, वो आपकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं आपके संतुष्टि के हिसाब से, और आप उनसे एग्री कर जाते हैं, तो यू कैन विथड्रॉ द। एक रिक्वेस्ट है सर, कंपाउंडेबल नेचर जो है अपने आप में बहुत टेक्निकल वर्ड है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट डज इट मींस टू बी ए क्राइम ऑफ कंपाउंडेबल नेचर। ये कंपाउंडेबल का जो यहाँ पर एक दो तरह का ऑफेंसेस होता है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। एंड एक होता है कंपाउंडेबल एट द बिहेस्ट ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। ये तीन तरह का है। नॉन कंपाउंडेबल है कि आप मान लीजिए हमारा सर फोड़ दिए हैं, 307 का मुकदमा हो गया, और नो आप कहिए कि हम आपसे सुलझा ले रहे हैं, हम लोग दोनों आदमी आपस में तय करके कोर्ट चले गए कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते हैं। कोर्ट का नो, फॉरगेट इट, इट्स अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, आई विल नॉट डू इट। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप मान लीजिए कि मेरा मोबाइल लेके चले गए, आप हम केस कर दिया, आप आए कि भाई मोबाइल ले लीजिए, हमसे गलती हो गई। ये तो कोर्ट देखा कि भाई ठीक है, मोबाइल लिया था, आधा घंटा 1 घंटा में फिर लौटा ही दिया है, कोई खास बात नहीं है। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इट वुड बी ए कंपाउंडेबल। अब ये कंपाउंडेबल है जहां पर कि विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट आप दोनों पार्टी आउट ऑफ द कोर्ट ही मामला को सलट लिए कि साहब ठीक है, जो चेक अमाउंट था मिल गया, वो हमको जो भी उससे डैमेज हुआ है वो हमको दे दिया, और हमको अब कोई फर्दर ग्रीवांस नहीं है, देन अननेसेसरीली व्हाई वी शुड ड्रैग इनटू द कोर्ट केसेस। तो आप उसको कंपाउंडेबल, आप उसको जाते हैं कोर्ट में कि भाई हम लोग अपना तय कर लिए हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं, मुझे क्षतिपूर्ति हो गई है, कोर्ट विल फिनिश द केस। मतलब सर अगर मैं ये कहूँ सर कि जहां पर भी फाइनेंशियल नेचर होता है और उसमें कोई क्रिमिनल मतलब 420 वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, जहां पर फ्रॉडिज्म इन्वॉल्व नहीं है, और वहां पर फाइनेंशियल नेचर का कोई नुकसान हुआ है, क्राइम हुआ जिसको कि फाइनेंशियली जिसको कि कंपाउंड किया जा सके, जिसको जोड़ा जा सके, तो उसमें जनरली कंपाउंडेबल नेचर माना जाता है। हाँ, which could be compensated monetarily. Then it can be done. Compoundable nature. और there is a long list, उसका एक लिस्ट है कौन सा compoundable को, this 138 comes under compoundable offense. I think these are the things. And still the greatest worry is the pendency of this. So people are trying to find out the ways and means. A number of suggestions are coming every day. One suggestion is don't make it a criminal offense, because nobody wishes to go to jail. Then he tries to take as many different techniques as he could apply, and that prolongs the disposal of the cases. Many suggestions are coming. I think I would like to allow all students to switch on their camera for a while before we close the session. We always allow this thing to students, and I would like all of you to switch on the camera, and in case any of you would like to speak anything with regards to if you have session, any query, you kindly feel free to raise. अगर आपके मन में आज के सेशन में मैं ये भी जानना चाहूंगा आप सबसे कि आज आप लोगों ने जो सुना
इसमें लीगल एस्पेक्ट को भी समझा, बिजनेस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझा। तो आप लोग इसमें ये बताओ कि भाई आपको कौन सी बातें हैं जो कि आपको याद रह जा रही है, या जो आपको समझ में आ जा रही है, या कोई कंफ्यूजन मन में आ जा रहा है, ताकि ये इंटरेक्टिविटी बनी रहे, है ना। ये मोनोलॉग हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक सोनी मैम वांट्स टू से समथिंग। आप में से जो भी स्टूडेंट भी कुछ कहना चाहता है, मैं उनको अलाउ बिल्कुल करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी बात को रखो। यस सोनी मैम प्लीज। यस सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि फोर्स सिग्नेचर हो जाता है, सपोज करिए कि कोई सिग्नेचर कॉपी करने में माहिर हो और वो अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसको किसी का डेट चुकाना है, लोन पे करना है, और वो मेरा सिग्नेचर को फोर्स करके वो इशू कर देता, तो वो जिसको इशू करता है उसका तो बिल्कुल टाइटल बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल बोना फाइदे, कोई गलती नहीं है उसकी, उसको ये मालूम भी नहीं कि फोर्स्ड सिग्नेचर है। तो क्या उस समय में जिसको ये इंडोर्स किया गया है या जिसको फर्दर दिया गया है वो चेक, क्या वो उसको किसी तरह से हार्मफुल या उसके लिए कोई लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। द प्रॉब्लम विल क्रिएट to those who issued the check. If you issued a check in my name, my putting my signature, and bank returns it, that signature doesn't tally. नहीं, बट सर यहाँ पर ओनस आपके ऊपर रहेगा कि आप ये प्रूफ करें कि आपका साइन आपने नहीं बनाया है और ये चेक आपने इशू नहीं किया, आपका चेक है ये। अब जो आपने अगर हमसे चेक लिया है और तो हम दूसरे का सिग्नेचर बना के आपको चेक नहीं दे सकते हैं। नहीं, इनका कहने का मतलब ये था कि इनका चेक कोई और व्यक्ति पहले तो इनके चेकबुक पर किसी ने अपना इनका दस्तखत करके चेक जमा कर दिया। हाँ, पहले तो इनका चेक किसी और लीफ या बुक कुछ भी किसी और के पास पहले जाए और फिर वो उनकी दस्तखत को भी अच्छे से बनाए और फिर वो चेक बाउंस हो जाए। तो जब बाउंस होगा तो ऑब्वियसली you are nowhere, you have neither issued the check, you have neither given to that bank, you have nothing to do with the debt or liability with that person. But then the onus would be completely on her to prove that she have not issued the check. Correct. The presumption would be that you have issued the check. Yes. और सर क्या बैंक और क्या बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मैं भी तो बैंक को पूछ सकती हूँ कि व्हेन आई हैव नॉट साइंड यू हैव टू चेक माय सिग्नेचर? बैंक अगर देखेगा कि सिग्नेचर टैली नहीं करता है, इट विल रिटर्न। नहीं, लेकिन अगर बैंक को लगा कि वो टैली कर रहा है तो बैंक क्लियर कर सकता है। बैंक क्लियर कर सकता है। यू कैन नॉट। यस दैट्स करेक्ट। आप अपना साइन ध्यान दीजिए, आपका सिग्नेचर सही होना चाहिए, उसको जल्दी कॉपी ना किया जा सके। दूसरा, अपना चेकबुक इधर उधर मत रखिए। एंड एक तो चेकबुक पर कभी साइन करके मत रखिए। हाँ ये गलती अक्सर लोग करते हैं। हाँ। तो रिशांत बताओ, तुमको क्या समझ में आया? आज क्या सेशन लगा तुमको? बहुत दिन के बाद तुमको देख रहे हैं। यस सर। हाँ शर्मा जी। यस सर, काफी इंटरेक्टिव रहा और नया चीज सीखने को मिला जिसके बारे में चेक के बारे में उतना जानकारी नहीं था ऐसे। और उसके बाद सर, लाइफ में नहीं सर, अभी तक नहीं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है, जो पेइंग स्लिप जमा करते हैं, चेक विड्रॉ करते हैं, जिन्होंने बैंकिंग किया है? देखिए मोदी जी सबका जनधन खाता भी खुलवा रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना मिनिमम लेवल पर है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि लगभग 20% स्टूडेंट है जिनका बैंक अकाउंट है और आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लाइफ में चेक काटा है ना। तभी आप लोग आजकल के जमाने में पिक्चर में डायलॉग नहीं आती ना कि ये लो चेकबुक और जितना पैसा भरना है भर लो। तो आई थिंक ये सवाल भी पूछना चाह रहा है विक्रम। यस विक्रम जी। So good morning sir. Good morning. I think so can't issue the check to a student. There is some problem with your network. So if you can put your video off, probably it will improve. You are not very much audible to me, at least. I don't know what others.
सर वो क्वेश्चन गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अगर 18 ईयर से कम है कोई स्टूडेंट और उसको कोई चेक मिला किसी नाम से होकर के, तो कैसे इशू कर सकता है बैंक में इस रीजन, अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं है? सर ये पूछना चाहता हूं। अगर उसका बैंक अकाउंट है तो तभी डिपॉजिट होगा, यस सर। अदरवाइज नॉट। दूसरे के अकाउंट में नहीं डिपॉजिट हो सकता तुम्हारा चेक। यस You can open an account, even minors can open an account. यस। Yes, any other question? I think Priya has raised the hand. Priya, you want to ask something or you? Yes, sir. Sir, you said that for the preservation of dishonor of check, we can connect our check to realizations. Then how can we connect our check? Be a bit louder. You are not very much clear. Sir, actually you said that for the preservation of dishonor of check, we can connect our check to realizations. Then how can we connect our check to realization? This is my question. I don't get what do you want to say. You cannot send your check for realization. How can you send your check for realization? What is your question? Yes, If sir. somebody has given you the सवाल check, हिंदी में पूछो। you will have to present it to the bank. If it is returned unpaid, then only you have something to be worried about. And the provision has been made said that though he issues the check, he cannot take it casually. He should be conscious that he may have to face consequences. Therefore, he will not issue a check which would be dishonored. And if it happens, then law will take its course. Law will take action. That those legal actions have been provided in the Negotiable Instruments Act from chapter 138 to section 138 to 148 now. Earlier it was 138 to 142, then it came 143 to 147. Now 148 has been added and 143A has been added, where interim compensation has been provided. Before adjudicating, a certain amount would be paid to the payee. कुछ और Yes. पूछना चाह रही थी क्या? तुम्हारा सवाल कुछ और था क्या? No, sir. I can get my answer. चलो, very good. In sum and substance, we should know that it is not a joke. You cannot take it very casually. You have to be very conscious. We have to be very serious. Law has been made a bit stringent, and it has been seen that even on probability one can be punished. And the objective is twofold. One is to create a trust for check transactions, and other is to strengthen the banking system. I think this should suffice. Even after this session, if you have any query, you can get my email from Neeraj sir and you can ask me. I will reply you. यहाँ पर निखिल कुमार का एक सवाल है. Sir, please ask about the blank check taken by money lenders in village case. There is no question of blank check. You cannot go anywhere and say that I have received a blank check. Check always has to be a date. Check always has to be an amount. Sir, I do have a question. Yes. Sir, what is actually the basic difference between blank check and open check? Blank check and open check is if you have a checkbook, your check is blank. And yes. it is of some use. It is of no use unless you fills it up. Oh, so we cannot issue open check to someone? No, not at all. Not at all. You cannot issue someone that fill the amount and take the check. This you can do in practice, but you cannot do it in law. फिर ये हमारे डायरेक्टर सर वाली बात ही होगी कि मूवीज में ही होता है कि जितना बढ़ना है बढ़ लो और हमारी ये सिनेमा के लिए है और वैसे अगर इसको करना कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन कानूनी रूप से ये अलाउड नहीं है. कानूनी रूप से जिस व्यक्ति ने दस्तखत किया है और अगर उसने किसी का नाम लिखा है तो उसी हैंड राइटिंग में उसका अमाउंट भी होना चाहिए. Those who signed the check are bound to face the consequences. सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो पेरेंट्स वगैरह गांव घर में होते हैं और जिनके बच्चे बाहर
नौकरी करते, तो शायद वो अपने पेरेंट्स को जो बहुत एडुकेटेड नहीं हो या एटीएम या ऑनलाइन चीजों से बहुत ज्यादा कन्वर्सेंट नहीं हो, वो शायद अपने ऐसे माता पिता के पास वैसे चेक को छोड़ सकता है इन एन ओपन फॉर्मेट सिग्नेचर करके कि आपको जितना राशि की जरूरत हो आप भर के निकाल लिया करिएगा। तो क्या वो वैलिड नहीं होगा? If that check is presented to the bank and the whole question is that if that is dishonored, then only something will happen. If he leaves a check with his father and says that you fill the amount and you deposit in the bank, father fills the amount and goes to the bank, gets the amounts back, matter ends. But the problem would arise if the check would be dishonored. हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। Then only. अगर घर में कोई चेक दे रहा है तो बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम होगा, तभी प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज चेक लौटे या कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है बाप बेटे के बीच में। Ma'am, I have a revolver with 6 cartridges filled in it. I am not committing any offense, but if the moment I will shoot anyone, I will be taken to task. Yes, sir. That's correct. So, Nishant want to say something. वैसे ये एक प्रैक्टिस का विषय भी है कि कभी भी चेक को साइन करके रखना नहीं चाहिए। It's an ordinary prudent precaution that you don't leave it to chance. लेकिन अगर आप साइन चेक किसी को दे रहे हैं और वो उसमें कोई अमाउंट भर करके कर रहा है तो बैंक तो उसको ऑनर करने के लिए बाउंड है। हाँ। Yes, Nishant. Sir, good morning, sir. Yeah. Sir, I have read somewhere that we have to make double cross mark in check. So what is the importance of it? If you have crossed the check, then cash will not be given to you. It would be endorsed to your account. That's the only purpose of crossing it. Right? आप जब चेक जारी करोगे, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिसको चेक दे रहे हो उसको आप बेयरर चेक दे रहे हो कि वो जाके काउंटर पे, आप ही के बैंक के काउंटर पे जाके आपके खाते से पैसा निकाल ले नगद, या उसको वो अपने खाते में जमा करे। तो जब आपने डबल क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है कि वो अकाउंट पे ही हो गया। आपने कॉर्नर में 2 लाइनें उस पर डाल दी तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट पे ही हो गया, अब वो अकाउंट में ही जमा होगा। Even if you don't write account payee, the check becomes account payee. हाँ, अगर आपने 2 लाइन में डाल दी खाली तो वो अकाउंट पे ही हो गया। अदरवाइज आप उसमें अकाउंट पेई ओनली लिख सकते हैं। ठीक है। मेरे पिताजी मुझे बचपन में चेक लिखना सिखाते थे कि चेक कैसे भरा जाता है, चेक कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको उसमें काटना है, कैसे दस्तखत करना है और कैसे पीछे में दस्तखत करना है। और वो मुझसे बैंकिंग का काम बचपन में जब मैं स्कूल में था तो वो करवाते थे ताकि मैं सीख सकूं कि चेक पे क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। अब आप लोगों ने, अभी आप लोग कॉलेज में आ गए, ज्यादातर लोगों ने बैंक खाता भी नहीं खोला है। जब मैं क्लास 4th में था तब मैंने पहली बार पापा के खाता को यूज करना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरा अपना खाता खुला। मैंने अपने गुल्लक का सारा पैसा उस खाते में डाल दिया और पापा का वो जो खाता था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में था, मैं पैसा जमा करता था। जब मेरे पास आज के तारीख में तो जनधन अकाउंट में जो मेरा लेबर सब काम करता है, दे हैव अकाउंट। नहीं तो यहाँ तो सब ये लोग, इन लोगों ने खाता नहीं खोल रखा है बैंक में। मेरे कुछ ऐसे मजदूर हैं जो मेरे घर में घर पर काम करते हैं, उनको मैं पटना में उनके जनधन खाते में यहाँ से पैसा भेजता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं 100 रुपए, जब मेरे पास 100 रुपए कलेक्ट हो जाते थे, चाहे वो क्वाइंस में हो चाहे कैसे भी हो, तो मैं उस 100 रुपए को लेकर के घर के बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा था, जिस गली में रहता था उस गली के ठीक बाहर रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच थी, तो मैं वहां जाता था, पैसा जमा कर देता था और मुझे पे स्लिप पे मोहर लगा के मिल जाती थी और मैं बड़ा खुश होता था कि मेरे खाते में पैसा जमा होते जा रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो फिर एक बार जरूरत पड़ी, मैं पैसा निकालने गया कि आज पैसा निकालने आए हैं, आज जमा करने नहीं आए हैं, आज निकालने गए आए हैं। तो मालूम पड़ा कि बेटा तुम जो पैसा जमा कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी का वो खाता बहुत दिनों से उन्होंने ऑपरेट नहीं किया था। तो हम बोले ऑपरेट नहीं किया था, पहले डोरमेंट हो जाता था, तो वो डोरमेंट अकाउंट हो गया था। तो उसमें नियम यह होता है कि आपको 6 महीने के अंदर में खाता में से कुछ ना कुछ विड्रॉ करना है। जमा करने से मतलब नहीं है, विड्रॉ करना है। तो हम तो जमा करते जा रहे थे, हम बोले अब तो मैं सारा पैसा मेरा चला गया, जितना पैसा मैंने जमा किया था अपनी पॉकेट मनी का। और जब कोई घर में आके लिफाफा दिया, कोई मम्मी को बोले कि भाई वो लिफाफा में 100 रुपए दे के गई थी बुआ जी, वो मेरे को दे दो, बैंक में जमा करूंगा। तो मम्मी ने दे दिया कि जाओ भाई जाओ, और जाके तुरंत बैंक में पहुंच गया कि जमा करना है। तो सारा पैसा मेरा वो फंस गया। तो मैंने बोला कि तो डोरमेंट हो गया था। तो फिर मैंने पापा को बुलाया, पापा अपने वर्क से निकल करके आए और उन्होंने अपने डोरमेंट खाता को चालू करवाया। और बैंक मैनेजर मुझसे मिला, बैंक के जो मैनेजर थे वो मिले। उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम्हारा अपना खाता खोल देते हैं,
तुम पापा का खाता में क्यों पैसा जमा करते हो? तो उसी समय मुझे लगता है मैं क्लास 5th में रहा हूँगा, मेरा अपना खाता खुला और उसमें मेरे पिताजी जो थे वो कस्टोडियन बने, उनका ही सिग्नेचर जो चलता था लेकिन विड्रॉइंग के लिए, लेकिन मैं एज ए माइनर उस खाते को ऑपरेट कर सकता था। मैं उस खाते में, वो मेरे नाम से खाता था और मैंने वहाँ से अपना बैंकिंग को समझा सीखा। और उसके बाद पापा का जो बिजनेस था, उनके चेक्स को हैंडल करना, उनके डिमांड ड्राफ्ट को बनवाना, तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन आपको बैंकिंग को प्रैक्टिकली करना, समझना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप बैंक में जाएंगे कोई काम करने के लिए तो वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। और आज आप लोग के लिए डिसऑनर की बात हुई, लेकिन ये सारी बातें जो आज आपके साथ हुई है, ये आपके लिए थ्योरी के रूप में है। जब तक आप इसको सामना नहीं करोगे, आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में नहीं आएगा। आई होप कि आपका कोई चेक बाउंस ना करे या किसी का दिया हुआ चेक आपको बाउंस ना करे, लेकिन शायद कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो आज ये बहुत अच्छी रही क्लास। मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से विनोदानंद मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और उनसे ये हमारा आग्रह होगा, उनसे ये निवेदन होगा कि आगे भी कानूनी विषयों पर और ऐसे विषयों पर जिनका सामना मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को आने वाले उनके जॉब में करना ही पड़ेगा, और अगर वो उन पर जानकारी नहीं रखेंगे तो उनको सुनना पड़ जाएगा कि क्या बीबीए करके आए हो, क्या बीकॉम करके आए हो। तो उनको प्रैक्टिकल साइड से, कानूनी रूप से उनको वो आप दक्ष बनाइए सर। और इस तरह के जो विषय हैं, सोनी मैम has something to say. She was raising her hand. अच्छा, बिल्कुल। And I had one topic in mind about the consumer protection laws. बहुत बढ़िया। I think the students should also know. Yes, ma'am. Sir, actually, I am applauding for you. I have nothing to ask. I am clapping for you. No, I wanted to come in the midst of students and teachers because that gives me a remnants of my own college days. Yeah, it's a very interactive I session, often sir. happen to be with the legally trained persons, so that I could not initially realize that what way I had to talk. And Neeraj ji helped me, and that made the discussion very lively. And I must express my gratitude to him for moderating this talk in a brilliant way. पूछता हूँ कि तुमको बताओ जीवन में माता पिता का महत्व कितना है, और माँ जो है वो सबसे पहली गुरु कहते हैं माँ को। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ कि जीवन में माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टीचर, तो सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, माँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ का जो महत्व है, माँ का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है और टीचर का पावर माँ से कम है। एक बार हमको एक स्टूडेंट बोला कि सर टीचर जो है वो माँ से भी ज्यादा पावरफुल है। तो हम बोले बहुत बढ़िया, आज तो कोई अच्छा स्टूडेंट मिला। तो हम बोले बताओ बेटा ऐसा कैसे कि टीचर माँ से ज्यादा पावरफुल है? तो बोला सर माँ जो जब लोरी गाती है ना तो एक बच्चा सोता है। लोरी गाने का सच्ची बात है, और जब टीचर क्लास लेता है No, these kinds of open class where you can talk to your teacher, teacher can talk to you, even through video conferencing, that creates lots of doubts, and you are able to know the things better. तो चलिए अच्छा लगा सर, बहुत आप सभी छात्रों बहुत धन्यवाद नीरज जी। हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग फिर के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। I have a question, sir. Sorry. अच्छा बिल्कुल, अभी yes, most welcome. Sir, I want to ask that what are the obligations of minors in case they misconduct a check? Because we see contracts that the government and laws are very liberal towards them. तुम्हारी एज क्या है? 21. अच्छा तब ठीक है। No liability for a minor. Minor cannot enter into any contract. Check is also a contract. Yes, sir. So therefore, minor is scot-free. So, that they can do anything and they will be free. No, minors, his guardian will take. He or she can operate only through their guardians. Neeraj ji has explained it all to you. Yes, sir. Thank you, sir. माइनर अकाउंट में गार्जियन लाइबल होता है। अगर आप माइनर अकाउंट का चेक दे रहे हैं, गार्जियन ही लाइबल होगा। He cannot operate independently. It has to be through his legal guardian, always.
इनफैक्ट उसमें सिग्नेचर अथॉरिटी के रूप में भी गार्जियन का ही साइन लगेगा। यस, जब तक कि वो मेजर ना हो जाए, जब उसका मेजर होने के बाद अपना साइन वो रिप्लेस कर सकता है। हाँ, वो रिप्लेस होता है। Okay, sir. Thank you so much, sir. चलिए, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Now it's time to leave. श्योर सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे, आप रुकेंगे एक बार, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। यस, अभी कुछ वेबिनार्स और मैं प्लान आउट कर रहा हूं। आप लोग चाहते हैं किस विषय पे वेबिनार पसंद करना चाहेंगे?